Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing good at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. पेज नंबर 22. आज हम आपके यूनिट नंबर 1 का लास्ट टेक्स्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. आपके टेक्स्ट नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन है द ऑर्फन एलिफेंट एंड द सेकेंड वन इज कैंडी परेहरा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ऑर्फन एलिफेंट फर्स्ट. मैं इसको एक रीड दूंगी, आप डिफिकल्ट वर्ड्स बोर्ड से नोट डाउन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. In Pinawala Elephant Orphanage in Sri Lanka, a baby elephant stands by himself. He is tied to a tree, although the rope which ties him is unnecessary because he is completely still with his head hanging low and his trunk curling on the ground. He is a picture of misery and dejection. Misery. What is the misery? Misery's meaning? A state of great physical or mental distress or discomfort. Its Urdu meaning is तकलीफ. Dejection का क्या मतलब है? मायूसी या उदासी. Feeling of being unhappy or without hope. Paragraph number 2. Just 1 month before, he was brought to the orphanage by villagers who had found him alone and deserted. His body yellowed and neglected. Where was his mother? Perhaps the herd had lost the little elephant and she was now grieving for her baby. Grieving, its English meaning is feel intense sorrow. Its Urdu meaning is ghamgeen, which she had carried inside her for 22 months before finally giving birth to him. Perhaps the herd had searched and searched for the lost baby and then forced to move on for the sake of their own survival. Perhaps the mother had died. Whatever the reason, the little orphan now stands by himself even when led to the river where the other young elephants nuzzle him and splash each other with water. 10 months later, the scene has changed. At the orphanage, orphanage का क्या मतलब है? A home for children whose parents are dead or unable to care for them. Its Urdu meaning is yatim khana. At the orphanage, a group of baby elephants shriek excitedly as they are given their milk. Shriek का क्या मतलब है? Utter a high-pitched, piercing sound or words from pain or excitement. Its Urdu meaning is cheekh utna. Afterwards, they play in the river, running and splashing. In their midst is a black, well-fed, happy little elephant, the sad little orphan who stood silently by the tree with his trunk curled on the ground 10 months before, has found a new life. Now, come to the explanation. Paragraph 1. In Pinawala Elephant Orphanage in Sri Lanka. श्रीलंका में श्रीलंका कंट्री में पिनावाला एक जगह का नाम है और उधर एक एलिफेंट के ऑर्फेनेज की बात हो रही है जो हाथियों का यतीम खाना है. श्रीलंका में पिनावाला में एलिफेंट्स का जो ऑर्फेनेज है, जो यतीम खाना है, उधर क्या है? अ बेबी एलिफेंट स्टैंड्स by himself. He is tied to a tree although the rope which ties him is unnecessary. आप कहते हैं कि वो खड़ा हुआ है, एक ट्री के साथ बंधा हुआ है एक रस्सी के थ्रू. जिस रोप से वो बंधा हुआ है, वो रस्सी जो है, वो रोप जो है, वो बड़ी अननेसेसरी, गैर मामूली सी मामूली सी वो एक रस्सी है जिससे वो बंधी हुई है. जो बेबी एलिफेंट है, बहुत छोटा सा एलिफेंट है वो. बिकॉज ही इज कम्प्लीटली स्टिल विद हिज हेड हैंगिंग लो एंड हिज ट्रंक कर्लिंग ऑन द ग्राउंड. ही इज अ पिक्चर ऑफ मिजरी एंड डिजेक्शन. वो जो खड़ा हुआ है उसने अपना सर नीचे किया हुआ है और बहुत नाउमीद नजर आ रहा है, बहुत उदास, मिजरेबल सा नजर आ रहा है और काफी मायूस नजर आ रहा है. डिजेक्शन उसके हालत से, उसकी सिचुएशन से हमें मालूम हो रही है कि वो बहुत ज्यादा खफा है. उसने अपना सर नीचे किया हुआ है, एक बेबी एलिफेंट. नाउ just 1 month before, he was brought to the orphanage by villagers who had found him alone and deserted, his body yellowed and neglected. 1 month पहले जो कि वहाँ के विलेजर्स थे, पिनावाला के जो विलेजर्स थे, जो देहाती थे, जो गांव के रहने वाले थे, उन्होंने इस ऑर्फेनेज में, इस यतीम खाने में इस बेबी एलिफेंट को पेश किया
उनको ये पहले मिला बेबी एलिफेंट, उन्होंने फाउंड किया इसको, जब उसको मिल गए वो लोग इसे ऑर्फनेज ले आए। ये ही वॉज ऑल अलोन, ये बिल्कुल अकेले था, बिल्कुल इसके पास कोई नहीं था। इसकी पूरी बॉडी पीली हुई हुई थी, येलोड, हिज बॉडी वाज येलो एंड नेग्लेक्टेड, बड़ा कमजोर सा ये एलिफेंट था। वेयर वाज हिज मदर, उसकी माँ कहाँ थी? Perhaps the herd had lost the little elephant and she was now grieving for her baby which she had carried inside her for 22 months before finally giving birth to him. ये कहते हैं कि जो हर्ट था, जो उस बेबी एलिफेंट का जो ग्रुप था, हर्ट था, वो उनसे ये खो गया था कहीं, उन्होंने इसको लॉस्ट कर लिया था, इस छोटे से लिटिल एलिफेंट को। और उसकी जो माँ थी वो बड़ी उदास थी, बहुत मायूस थी, बहुत रो रही थी अपने बेबी के गम में, अपनी बेबी के बिछड़ जाने के गम में वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, बहुत ज़्यादा मायूस थी। शी वॉज ग्रीविंग। और क्योंकि इसको 22 मंथ्स पाला था इसने और इसको जन्म दिया था। Perhaps the herd had searched for the lost baby and then been forced to move on for the sake of their own survival. Perhaps the mother had died. अब इसका जो हर्ड है, जो इसकी ग्रुप की बात हो रही है कि उन्होंने बहुत तलाश किया, इस लॉस्ट बेबी को उन्होंने बहुत तलाश किया कि जो ये गुमा हुआ था, ये एलिफेंट उनको मिल जाए और वो अपना सफ़र वापस रवाना करे, पर ये बेबी उनको नहीं मिला था। और फिर ये लोग अपने सफ़र पर रवां दवा हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना सफ़र कंटिन्यू करना था। और इसमें इसकी मदर का इंतकाल हो गया। His mother had died. Now paragraph number 3. Whatever the reason, a little orphan now stands by himself even when led to the river where the other young elephants nuzzle him and splash each other with water. ये कहते हैं कि अब चाहे जो भी रीजन है, ये जो छोटा सा यतीम एलिफेंट है, अब ये खुद खड़ा हो सकता है, ये खुद रिवर की तरफ जाता है अपने, और जो एज फेलोज जो एलिफेंट है इसके, उनके साथ खेलता है, उनके साथ वो उनसे प्यार करते हैं। दे यूज टू नजल दिस यंग एलिफेंट, इस छोटे से एलिफेंट को वो लोग प्यार करते हैं। एंड ये लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, स्प्लैश ईच अदर विद वाटर। 10 months later, the scene has changed. At the orphanage, a group of baby elephants shriek excitedly as they are given their milk. अब 10 months के बाद, 10 महीनों के बाद सीन बिल्कुल चेंज हो गया था। ये जो सैड, ये जो मायूस, ये जो मिजरेबल एलिफेंट था, अब इसकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। ये एक हंसता खिलता एलिफेंट हो गया था और इसकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई थी। और ये एक्साइटेडली जब चीखता था, इसके जो इर्द गिर्द के सारे एज, इसके एज के जो एलिफेंट्स थे, ये एक साथ इस तरह एक्साइटेडली श्रीक करते थे, चीखते थे जब इनको अपने हिस्से का दूध मिलता था, और ये हंसते खेलते थे। Afterwards, they play in the river, running and splashing. In their midst is a black, well-fed, happy little elephant, the sad little orphan who stood silently by the tree with his trunk curled on the ground 10 months before has found a new life. अब कहते हैं कि ये लोग क्या करते थे, रिवर के करीब जाते थे और उधर भागते थे और एक दूसरे पे पानी फेंकते थे, और they used to play there. और इन सारे एलिफेंट्स के ग्रुप में, हर्ड में, एक छोटा सा ब्लैक कलर का हट्टा कट्टा वेल फेड एक एलिफेंट था, और जो कि 10 महीनों पहले एक ट्री के ट्रंक के साथ रोप से टाई हुआ था और बहुत गमगीन था। मतलब कि इसकी जो सिचुएशन है वो गमगीन से, ये इसकी मिजरेबल सिचुएशन से इसकी सिचुएशन हैप्पी हो गई थी, ये काफ़ी हैप्पी हो गया था। आई होप आपको इधर तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंडी पेरेहरा पढ़ेंगे। Until then, take care. Allah Hafiz.